تمہارے گھر میں کوئی بیٹی ہے؟ کہا حضور ہے۔ کہا میرے گھر میں بھی ایک نوجوان بیٹا ہے۔ کہا حضور آپ مذاق تو نہیں کر رہے ہیں؟ کہا آپ امیر المومنین؟ اور کہا میں بیوہ عورت۔ کہا آپ کا بیٹا؟ کہا میری بیٹی۔ عمر نے کہا عمر دولت دیکھ کر کسی کی بیٹی سے اپنے بیٹے کا رشتہ نہیں کرتا، دینداری دیکھ کر اپنے بیٹے کا رشتہ کرتا ہے۔ آج آپ کو بھی چاہیے کہ جس بچی کے پاس دینداری ہو اسے اپنے گھر کی بہو بنائے گا۔ جب وہ تمہارے گھر پہ آئے گی نا تو وہ یہ سوچے گی 18 سال میکے میں رہی وہ میرا باپ تھا، 18 سال میکے میں رہی وہ میری ماں تھی، اگر 60-70 سالہ زندگی مجھے یہاں گزارنی ہے اس کے باپ کو میں باپ بنا لیتی ہوں، اس کی ماں کو ساس نہیں ماں بنا لیتی ہوں۔ خدا کی قسم ہر گھر سے جھگڑا مٹ جائے گا، ہر جنت نما معلوم ہونے لگے گا۔ دیندار بچی ہونی چاہیے۔ ہم لوگ دیندار بچی کو ترجیح نہیں دیتے۔ عمر فاروق گئے، اچھا ایک اور غلط بات بتائیں، شادی میں کہتے ہیں سمدھی صاحب کا کیا ہوا؟ کہا کہ میرے بیٹے کی بارات جو ہے گی نا تو 40 اسکارپیو سے آئے گی، 40 اسکارپیو آئے گی، مطلب باراتیوں کی 50 گاڑیاں آئے گی۔ اس کا باپ سوچتا ہے سب تو میں نے کیا، اگر باراتیوں کے بارے میں نہیں کہہ دوں گا تو ناک پڑ جائے گا۔ لیکن کبھی عمر فاروق کی زندگی دیکھ لیں، جب اتنے بڑے بیٹے، اتنے پیارے بیٹے صوم و صلات کے پابند، عمر چاہتے تو کتنے لوگوں کو لے کے جا سکتے تھے۔ آپ بھی بولیے نا، خلیفۃ المسلمین ہے، خلافت پر بیٹھے ہیں، تخت پر بیٹھے ہیں، چاہتے تو کتنے کو لے کے جاتے، لیکن عمر لے کے نہیں گئے۔ لیکن آج کا 2-4 روپے ہو جانے والا کہتا ہے 40 گاڑی 50 گاڑیاں لے کے جائیں گے۔ اب گھر والا سوچتا کیا کریں حضرت، سب کچھ تو انتظام کر لیا، اب باراتیوں کو کھلانے کا پیسہ نہیں ہے۔ گئے مکھیا صاحب 1 لاکھ روپے ادھار دیجئے۔ مکھیا صاحب کہتے میرے پاس نہیں ہے۔ گھر آ گیا، کہا بیوی ناک کٹ جائے گی، 50 گاڑیاں آئے گی باراتیوں کی، کیا کریں؟ مکھیا صاحب کہتے نہیں ہے۔ کہا ایک کام کرو، جا کے کہو کہ سود پہ کسی سے لے کے دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہم دے دیتے ہیں، کسی سے لے کے دیتا وہی ہے۔ سینکڑوں دردمند ملتے ہیں، کام کے لوگ چند ملتے ہیں، جب کبھی مصیبت ستاتی ہے دروازے سب کے بند ملتے ہیں۔ دے دیا، دے دیا، اللہ اکبر۔ سود کے پیسے سے گھر لے کر آیا، بیوی نے کہا میرے شوہر ہو گیا انتظام کا ہو گیا، اب اسی پیسے سے جانور خریدا گیا، مسالہ، تیل، ساری چیزیں خریدا۔ سارے باراتی لوگ آئے، سب کو سود کے پیسوں سے کھانا کھلایا گیا۔ باراتی بھی کھایا، دولہا بھی کھایا، دلہن بھی کھائی، سب لوگ کھا کے گئے۔ جب اس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا تو پیدا ہونے کے بعد جیسے ہی ہوش سنبھالا بولنے لگا تو سب سے پہلی زبان سے بات نکلی تو گالی۔ جوان ہو گیا تو باپ کو الگ گھر میں رکھا، خود اچھے مکان میں رہنے لگا۔ کہا مولانا صاحب میرا بیٹا نافرمان ہو گیا، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا ہے، میرا بیٹا جو ہے ایسا کرتا ہے، میرا بیٹا ویسا کرتا ہے۔ میں نے کہا ایک بات بتاؤ، تم نے اپنی بیوی کو شادی کی پہلی رات جو پہلا نوالا کھلایا تھا وہ حلال کا کھلایا تھا یا حرام کا کھلایا تھا؟ اس نے کہا مولانا مجھے یاد نہیں ہے۔ میں نے کہا خدا کی قسم یاد کر لے، اگر تو اپنی بیوی کو حلال کھلائے گا، اپنے بچوں کو حلال کھلائے گا، تیرا بچہ تیرا نافرمان نہیں ہوگا، تیرا بھی وفادار ہوگا، صحابہ کرام کا بھی وفادار ہوگا، نبی کا بھی وفادار ہو جائے۔ تو حرام کھا کر کے سوچے گا کہ میرا بیٹا وفادار ہو جائے، نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آج باراتی لوگ بھی جو ہے سود کے پیسے سے کھاتے ہیں، دولہا بھی سود کا کھاتا ہے اور دلہن بھی سود کے پیسوں کا کھانا کھاتی ہے۔ تو میرے معاشرے میں کیا ہوگا؟ میرے معاشرے میں ایسی گالیاں گلوچ دی جائے گی، ڈانس کیا جائے گا، ڈی جے پہ بیٹھیاں اور بہنیں ناچا کرے گی۔ میرے بھائی خدا کی قسم حلال رزق کھانا شروع کر دو۔ بات نکلی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کی بیٹی کے ساتھ میرے بیٹے کا رشتہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ چند لوگوں کو لے کر آئے اور ان کی بیٹی کو لے کر کے اپنے گھر کا دلہن بنا کے لے کر گئے۔ عمر فاروق نے اس رات کی تاریکی میں بولنے والی بیٹی کو اپنے گھر کا دلہن بنا لیا، بہو بنا لیا، بیٹی بنا لیا۔ فجر کی نماز پڑھ کر آئے، عمر فاروق جو ہے اللہ اکبر جانے لگے بیت المال کی طرف، تو اس بچی کو بلائے، کہا بیٹی ادھر آؤ۔
बेटी इधर आई। उमर फारूक ने कहा बेटी सुनो, मैं जब भी बैतुल माल की तरफ जाने लगूंगा तो तुम मुझसे कुछ मत कहना, लेकिन एक काम जरूर करना, चाय दो ना दो, पानी दो ना दो, बेटी एक काम जरूर करना। बाबा क्या करें? उमर फारूक कहते हैं रात में तूने तो तेरी माँ से कहा था कि माँ कोई देखे ना देखे, खुदा जरूर देखता है, जब मैं कुर्सी पे बैठने जाऊं तो तुम मुझे याद दिला देना। बाबा उमर आप कुर्सी पे जा रहे हैं, बैतुल माल में जा रहे हैं, कोई देखे ना देखे, खुदा जरूर देख रहा है, इसलिए मैंने तुझे अपने घर का चलिए तकरीर अधूरी रह गई। हजरत ने कह दिया है कि उस्मान गनी पर बात हो जाए। सुभान अल्लाह। हजरत हमारे समाज में उस्मान गनी, अल्लाह अकबर, उस्मान गनी जब आ जाते थे तो मेरे मुस्तफा हया करते थे। उस्मान गनी कौन है? जिन्हें ज़ुन्नूरैन कहा गया। नबी ने अपनी 2 बेटियों का रिश्ता उस्मान गनी के साथ किया है। बोलिए भाई बात सुने थे आप? मेरे नबी की 2 बेटियों के साथ उस्मान गनी का निकाह, इसीलिए उन्हें ज़ुन्नूरैन कहा गया। उस्मान गनी पर 40 दिन के लिए पानी बंद किया गया। उस्मान गनी को जब शहीद किया गया तो उलमा यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह अकबर, रात की तारीकी में जब जनाजा उठता था, किस उस्मान की बात करता हूँ, वो उस्मान गनी, अल्लाह अकबर। उस्मान गनी एक दिन मेरे आका से कहते हैं या नबी अल्लाह, मैं माल जितना लगाता हूँ माल में 2 गुना फायदा होता है। माल जहां लगाता हूँ ना 10 गुना फायदा हो जाता है। होता ना, लोग कहते हैं कि हम गए भाईजा, हम गए फलाना जगह तो खसारा हो गया, दिल्ली गए वहां से लीची लेके आए खराब हो गया, बंगाल का आम लेकर दूसरी जगह जा रहे थे नुकसान हो गया। उमर फारूक कहते हैं कि हुजूर आप कम से कम दुआ कर दीजिए ताकि मेरी दौलत कम हो जाए। दौलत कम होने की दुआ कर रहे हैं और नबी से करवा रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया सुनो, जब तुम कुछ खाओ ना तो फाका मार के खाओ और मेरे बारगाह में आना। अल्लाह अकबर। ऊंट पे सवार होकर उस्मान गनी आ रहे थे, ज्यादा दूर का फासला नहीं था, आते आते काफी वक्त हो गया। मेरे आका ने फरमाया उस्मान आने में इतनी ताकीद क्यों कर दी? कहा या नबी अल्लाह, मलीदा पकाकर ऊंट पे सवार होके मैं आ रहा था और आपने कहा था फाका मार के खा के आना, तो जब मैं खा रहा था तो कुछ नीचे गिर जाता था, फिर मैं ऊंट को बिठाता था, फिर उसको चुन चुन के उठाता था, फिर उसको लेता था, फिर ऊंट पे सवार होता था, फिर खाता था, फिर गिर जाता था, फिर ऊंट को बिठाता था। बोलो ना भाई, आप और हम घर में खाना खाने बैठते हैं, चावल इधर गिर जाए कोई परवाह नहीं, बेटी इधर खाना फेंक दे कोई परवाह नहीं, ये वो जो जिस झाड़ू से घर को, मेरी बेटी तुम्हारे बड़े फायदे की बात बोल रहा हूँ, जिस झाड़ू से आप घर को साफ करती हो, दस्तरखान के ऊपर जो खाना है कभी कभी हमारी बेटियां उसे भी साफ करती है, उसी झाड़ू से करती है कि नहीं बोलिए ना, उसी से साफ करती है, उसकी कोई अहमियत नहीं रखती और ले आकर दाना को फेंक देती है, खाना को फेंक देती है। उस्मान गनी फरमाते हैं कि हुजूर आपने जैसा कहा था मैं वैसे करके खा रहा था, तो जो मलीदे के टुकड़े नीचे गिरते थे तो फिर मैं ऊंट को नीचे बिछाता था, एक एक टुकड़े को उठाता था, एक एक कतरे को उठाता था, फिर ऊंट पर बैठता था, फिर फाका मार के खाता था, फिर गिरता था, फिर बैठ जाता था। इसलिए इतनी ताकीद हुई है। मेरे आका ने फरमाया उस्मान जो दाने की कदर करता है वो कभी मुफलिस नहीं हो सकता है, वो कभी गरीब नहीं हो सकता। हजरत ने मुझे कहा जल्दी खत्म तो होना चाहिए भाई, अब क्या करें। उस्मान गनी पर हजरत, मैं जिस तरीके से हजरत ने आपको ऑफर दिया ना, अल्लामा तफीजुल इस्लाम साहब, मैं भी आपको ऑफर देता हूँ, अगर मैं जिंदा रहा तो उस्मान गनी और मौला अली पर इंशाअल्लाह आकर मैं कुछ बातें जरूर पेश करने की कोशिश करूंगा। जब सारी बातें हो गई तो अली मुर्तजा पर भी एक बात हो जाए। हजरत आयशा बैठी हुई है, मेरे नबी बैठे हैं, हजरत अली आ रहे हैं। कौन अली? कौन अली? अरे वो अली जिसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं आना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। फिर अली की बात, अली तो वो अली है। मेरे आका की बारगाह से एक शख्स लौट कर आ रहे हैं, अली ने फरमाया कहां से आ रहे हो? कहा नबी के दरबार से आ रहा हूं। उमर फारूक अली मुर्तजा ने मुस्कुरा कर कहा है शख्स तुम्हें मालूम है जो नबी की बारगाह में एक बार जाता है अली से 2 बार मिलना पड़ता है, जो नबी से 1 बार मिलता है उसे अली से 2 बार मिलना पड़ता है। उसे गुस्सा आया, कहा अली है, अली ऐसी बात करता है तो नबी से अपने आप को बड़ा नहीं, कहा जो नबी से 1 बार मिलता है अली से 2 बार मिलना पड़ता है। उसको
गुस्सा आया तो कहा मैं चलता हूँ अभी मेरे नबी की बारगाह में। गए, कहा या नबी अल्लाह, अली ने बहुत बड़ी बात कह दी है। मेरे आका ने फरमाया क्या कह दिया है? कहा अली कहता है जो नबी से एक बार मिलता है उससे अली से 2 बार मिलना पड़ता है। आका ने फरमाया बुलाओ अली को। अली है। मेरे आका ने फरमाया अली तुमने उससे क्या कहा है? कहा या नबी अल्लाह मैंने कुछ नहीं कहा, जो आपने कहा वही कहा है। मैंने कुछ नहीं कहा, जो आपने कहा वही कहा है। क्या मतलब? अली मुर्तजा ने कहा या नबी अल्लाह आपने कहा है अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। तो शहर में आने के लिए, दाखिल होने के लिए दरवाजे से आना है और बाहर जाने के लिए दरवाजे से बाहर। अली की बात, फिर अली की बात आए और लोग मचल ना जाए। हजरत आयशा बैठी है, मेरे आका बैठे हैं, अली आ रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया ए आयशा देखो देखो देखो, मदीने का सरदार आ रहा है। हसन का बाबा आ रहा है, हुसैन का बाबा आ रहा है, फातिमा का शोहर आ रहा है। ये मेरी बेटियां, ये मेरी बहनें, शोहर नाराज हो जाए कोई परवाह नहीं। हजरत चाचा आप माँ पर बहुत मचल रहे थे, मैं खुदा की कसम माँ बाप पर बहुत अच्छी गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ। मैं तुमको हमेशा पढ़ता हूँ, जिसके भी दिल से माँ की, जिसके भी दिल से माँ की मोहब्बत चली गई, जिसके भी दिल से माँ की मोहब्बत चली गई, समझो कि उसके हाथ से, समझो कि उसके हाथ से जन्नत चली गई। हमारी बेटियां बूढ़ी हो गई, शोहर नाराज है कोई परवाह नहीं। 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल 5 साल मैं जा रहा था। मौलाना शोएब साहब बहुत अच्छे आलिम दीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना शोएब साहब जानते हैं मेरे इलाके में, मैं रहता तो एमपी में हूँ, घर मेरा बंगाल में है अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं यहाँ से जा रहा था रात के 8 बजे तो देख रहा हूँ कि एक दुकान खोलकर, दुकान वाला इलेक्ट्रॉनिक का वो दुकान है, उसके पंखे वगैरह ठीक करता है, पंखा भी रखता है, वो दुकान खोल कर बैठा है और मुझे समझी कहता है। तो मैं जा रहा था, गाड़ी रोका, कार रोक करके मैंने कहा कि यार अभी तक आप गए नहीं, मुझसे बहुत उम्र, आपकी उम्र क्या है, आप थोड़ी ज्यादा उम्र के हैं। मैंने कहा आप गए नहीं सकते? उसने कहा कि हुजूर क्या कर रहे हैं, छोड़िए। मैंने कहा यार आपके घर में आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, पोती है, नवासी है, बेटियां हैं, बेटे हैं, सब है, आप अभी तक रात में यहाँ पे तन्हा बैठकर दुकान में तन्हा है, घर जाते क्यों नहीं? तो उसके आंखों में आंसू आए, कहा कि क्या बात है मौलाना मंजर नवाज साहब, खुदा की कसम मेरी बीवी 6 साल से मुझसे बात नहीं करती, 6 साल हो गए मेरी बीवी मुझसे बात नहीं की है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी जहालत है। लेकिन मेरी बेटियों जब तुम बैठी हो तो एक बात लेके खड़ जाना और उसको गाड़ बांध के लेके जाना, पूरी तकरीर का एक जुमला जरूर खड़ लेके जाना मेरी बेटियों के लिए। एक दिन हजरत अली मुर्तजा करमुल्लाह वजहुल करीम हजरत फातिमा से नाराज हो गए। अल्लाह अकबर, होती है ना मियां बीवी में, हर किसी के घर में थोड़ी बहुत बात हो सकती है, ये मोहब्बत है। हजरत अली नाराज हो गए। आज हमारी बेटियों से, हमारी बहनों से, हमारी माओं से शोहर नाराज हो जाए तो खाना बंद, बात बंद, आना जाना बंद। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अली को मनाने लगी, अभी नाराज हुए, अली को मनाने लगी, ए अली मुझे माफ कर दो। पैर दबाने लगे, अली मुझे माफ कर दो। हाथ दबाने लगे, अली मुझे माफ कर दो। अली मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। एक बार नहीं, एक रात में 70 मरतबा अली से फातिमा ने माफी मांगी। कितने मरतबा? 70 मरतबा माफी मांगी। कौन है ये? जन्नती तमाम औरतों की सरदारा, शोहर की खिदमत करके, बच्चों की खिदमत करके, बाप से प्यार करके, मुसल्ला बिछा कर जब खड़ी होती है तो कुरान में फरमाता है वल्लदीना युबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदुन व क़ियामा। है परवरदिगार आलम, कोई इतनी लंबी रात बना दे, नबी की शहजादी जी खोल के 2 रकात नमाज अदा करे। वो फातिमा शोहर को राज़ी करने के लिए 70 मरतबा अली को राज़ी करने के लिए माफी मांगती रही, मांगती रही, मांगती रही, मांगती रही। अली नाराज थे। 71वां बार अली के पैर पकड़ के रोने लगी, अली
मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। अली अगर तुम नाराज हो जाओगे, मेरे बाबा नाराज हो जाएंगे, मेरा खुदा नाराज हो जाएगा। अली मुझे माफ कर दो। अली मुर्तजा थे। अली मुर्तजा ने हजरत फातिमा को माफ कर दिया। सुबह का सफेदा फैला। मेरे आका को फातिमा से बड़ी मोहब्बत थी और फातिमा को अपने नबी से, अपने बाबा से बड़ी मोहब्बत थी। मेरे आका अपनी बेटी फातिमा की पेशानी को चूमा करते थे। मेरे आका फरमाते थे, मेरे जिस्म का टुकड़ा मेरी बेटी फातिमा। हजरत फातिमा जब आई ना तो मेरे आका ने फरमाया, फातिमा गमगीन क्यों हो? हजरत फातिमा कहती है, गौर से सुनना, हजरत फातिमा कहती है, बाबा आज रात में अली मुझसे नाराज हो गए थे। मेरे आका ने फरमाया, बेटी जब अली नाराज हो गए थे तो तुमने क्या किया? बाबा मैं अली के सामने माफी मांगती रही, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 70 बार 71वां बार तक मैं माफी मांगती रही। मेरे आका ने फरमाया, बेटी ये बताओ अली ने माफ किया है कि नहीं किया है? माफी करवा के आई हो या ऐसे आ गई हो? अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा कहती है, बाबा 71वां बार जब मैंने पैर पकड़ा, आंखों से आंसू निकाला तो अली ने मुझे माफ कर दिया है। मेरे आका ने फरमाया, बेटी फातिमा अली अगर तुझे माफ न करता, अली तुझसे नाराज रहता और इसी असना में तुम्हारी मौत हो जाती तो तेरा बाप तुझसे नाराज होता, तेरे जनाजे में तेरा बाप शामिल नहीं। सुभान अल्लाह। शोहर का रुतबा कितना बुलंद वाला है। मेरी बेटियों तरह गौर करो, आज से अपने शोहर के दिल को मत दुखाना। तुम्हारा शोहर तुम्हारा हाकिम है। तुम्हारा शोहर तुम्हें जो कह दे उस चीज को मान लेना। और रिजालु कव्वामून अला निसा, अल्लाह ने मर्दों को हाकिम बनाया है औरतों का, तो औरतें हमेशा अपने शोहर की हुक्म की तामीर करे। एक औरत को हक नहीं बनता है कि उसके शोहर के दिल को दुखाए, उसको तकलीफ दे, बल्कि शोहर के लिए बनो, शोहर के लिए सवरो, शोहर के लिए तैयार रहो। जब तेरा शोहर कहीं से आए तो इस अंदाज में उसके साथ तुम जाकर मिलो, उससे बात करो कि तुम्हारा शोहर का दिल राजी हो जाए। जब तुम्हारा शोहर से राजी होगा तो मदीने के मुस्तफा राजी होंगे, खुदा राजी। एक पैगाम मुझे देना था, मैंने ये पैगाम दिया। आज के बाद शोहर से कभी लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, शोहर को कभी तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, शोहर जो कहे उसको मानने की जरूरत है। मेरे आका बैठे हैं, हजरत आयशा सिद्दीका बैठी है। हजरत मेरे आका ने फरमाया, हजरत अली आ रहे थे, मेरे नबी ने फरमाया, है आयशा देखो मदीने का सरदार आ रहा। किसका सरदार आ रहा? मदीने का। हजरत आयशा पुकार कर कहने लगी, या नबी अल्लाह, अगर अली मदीने का सरदार है, अली अगर मदीने का सरदार है तो आप कौन हैं? या नबी अल्लाह, अगर मदीने का सरदार अली है तो आप। मेरे आका ने फरमाया, आयशा अली मदीने का सरदार है और मैं मोहम्मद कुल जहान का सरदार। समझ रहे? मेरे आका कुल जहान के सरदार हैं। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत अच्छी बात। कितने लोग आइंदा साल फैजाने खुलफाए राशिदीन में शामिल रहेंगे, कितने लोग तैयार रहेंगे? मालूम नहीं है कितने लोग हम चले जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 2024 आने तक मंजर नवाज इस दुनिया में ना रहे, हम में से बहुत सारे लोग ना रहे मेरे भाई। लेकिन अगर हमने दिल से वादा कर लिया, खुदा की कसम साहबे किराम का फैजान बरसने लगेगा, नबी की नजर इनायत होगी तो दुनिया भी आबाद, आखिरत भी आबाद होगी। आप तमामी हजरात से मेरी गुजारिश है, मेरी मोहब्बत से नहीं, अली मुर्तजा की मोहब्बत में, फातिमा की मोहब्बत में, हसनैन करीमैन की मोहब्बत में, चारों खुलफाए राशिदीन की मोहब्बत में आप वादा करें, इंशाअल्लाह हम बिल्कुल तैयार हैं। जब जश्न खुलफाए राशिदीन मनाया जाएगा हम उसमें शामिल रहेंगे, हम उसमें तन मन धन की कुर्बानियां देने को तैयार हैं। जितने लोग देंगे साथ में हाथ उठाएं, ईमानदारी से उठाएंगे, दिल से उठाइए, दिल से। देख लीजिए हजरत, इसमें से जो नहीं ये करे मुझे फोन लगा के बात कराइएगा। मैं हाथ जोड़कर तुमसे कहता हूँ मेरे भाई, दुनिया में कुछ नहीं है, ये दौलत तुम्हारी नहीं, ये बिल्डिंग तुम्हारे नहीं, ये कारोबार तुम्हारे नहीं, ये खजाना तुम्हारा नहीं, ये मालूमात तुम्हारा नहीं। तुम्हारा क्या है? तो गौसे आजम से किसी ने पूछा था, हुजूर इंसान की अपनी कितनी चीजें हैं? गौसे आजम ने फरमाया, हर इंसान की अपनी 3 चीजें हैं। हुजूर क्या? गौसे आजम ने फरमाया, तुमने जो खा लिया वो तुम्हारा है, तुमने जो पहनकर पुराना कर दिया वो तुम्हारा है, तुम यहाँ रह करके जो तुमने आखिरत के लिए भेज दिया वो तुम्हारा है। तो आपको आखिरत के लिए भेजना है, आखिरत के लिए सरमाया जमा करना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। मुझे बहुत प्रोग्राम में हम लोग जाते हैं आए दिन, लेकिन आज जितना मुझे अच्छा लगा, खुदा की कसम मैं यहाँ से कह रहा हूँ,
علامہ اقبال نے کہا تھا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ چچا نماز مت چھوڑیے گا، عبادت مت چھوڑیے گا، بندگی مت چھوڑیے گا۔ آج ہم کہتے ہیں میرا گھر ویران ہو گیا، میرا گھر تباہ ہو گیا، میرا گھر برباد ہو گیا۔ میرے بھائی اسی گاؤں میں اللہ کا بھی گھر ہے۔ جب ہم رمضان کے بعد اس گھر کو ویران کرتے ہیں تو مسجد رات میں اللہ اکبر روتی ہوئی آواز میں کہتی ہے مولا تیرے ان بندوں نے مجھے ویران کیا ہے، تو بھی اس کو ویران کر دے، اس کو گھر کو تباہ برباد کر دے۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمارا گھر آباد رہے، ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں، اللہ ہمارے گھروں کو آباد کر سکے۔ مسجدوں میں جانے کی کوشش کریں، جلسہ کریں تو متحد ہونے کی کوشش کریں۔ ان علماء